See, first thing DHCP क्या? DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. Dynamic host, Dynamic Host Configuration Protocol. So it is a network protocol. The network protocol means it is present on the network, right? It is present on the network. So DHCP uses IP. क्या यूज करता है? IP. IP stands for Internet Protocol. IP stands for Internet Protocol. See, IP address means क्या है? Each address which is present on the network, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है. उसका एक यूनिक एड्रेस होता है टू आइडेंटिफाई द डिवाइस. That unique address is called as IP address. IP address. So what is DHCP? What is DHCP? DHCP server automatically assign IP address. Automatically assign करता है IP address to other, to each host on the network. जितने भी host वो server से connected है, DHCP server क्या करता है? DHCP server assigns IP address automatically. DHCP server assigns IP address automatically to each host which is present on the network. Automatically assigning of IP address with the help of DHCP server. ठीक है, उसके हम लोग बोलते हैं DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन. DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन. तो इसका एडवांटेज क्या है? सी, ये तो एक पॉइंट ये है, नो टू होस्ट कैन हैव द सेम आईपी एड्रेस. ये तो हमको पता है, राइट? कि कोई भी टू होस्ट का सेम आईपी एड्रेस नहीं होता, बिकॉज आईपी एड्रेस इज यूनिक. IP address is unique. So see, for example, what is the advantage of DHCP? Okay, advantage क्या है? See, one example is given here. Even if the network is small, network is small means less devices are there in that network. So means manually assign करना IP address. Manually means type कर करके assign करना manually. So it may be confused. Sometimes it may be confusing. Right? Manually assign करेंगे, sometimes confusing हो सकता है. We can do the mistake. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्वर पे हम लोग अगर DHCP का सेटिंग करेंगे, इफ आर डूइंग द DHCP कॉन्फ़िगरेशन ऑन द सर्वर, तो जितने भी वो सर्वर से कनेक्टेड डिवाइसेस है उनको ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन हो जाएगा. सो देयर इज नो नीड टू मैन्युअली सेट द IP एड्रेस इफ यू आर यूजिंग द DHCP, बिकॉज DHCP ऑटोमेटिकली असाइन करता है. एडवांटेज ये है कि कंफ्यूजन होता है, sometimes it may be confusing to assign the IP address. So in that case, we can use the DHCP. Okay. So DHCP makes life easier for users and the network administrator. Both users के लिए भी, network administrator के लिए भी उनका life easy हो गया है. Means automatically assign होगा. There is no need of management of IP address. मतलब management of IP address जो है उसका process simple हो गया है. सिंप्लीफाई कर रहा है वो. मतलब इट इज इजी टू असाइन द आईपी एड्रेस ऑन DHCP सर्वर. अब बाकी जो कनेक्टेड है डिवाइसेस, दे विल गेट द आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली. ठीक है. एवरीवन राइट DHCP फुल फॉर्म इन द चैट बॉक्स. DHCP स्टैंड्स फॉर, till then I am opening this Cisco packet tracer to perform this practical. तो DHCP स्टैंड्स फॉर, चैट बॉक्स में लिखो क्या है फुल फॉर्म ऑफ DHCP. See, Cisco packet tracer is opened now. So first we have to design the network. एक network design कर दो. ठीक है. So let me see the chat box first. What you have written? Full form of DHCP. Nagemuddin Arun. Yes, right. DHCP stands for Sarfraz, Dynamic Host Configuration Protocol. Dynamic Host Configuration Protocol. So let's design the network now.
व्हाट विल टेक वन सर्वर, राइट? तो सर्वर पे ही हम लोग क्या करेंगे, वी विल डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएचसीपी। इन सर्वर ओनली वी विल डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएचसीपी। तो रिक्वायरमेंट का, एक सर्वर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो सी यहाँ ये जो सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, दिस वन, सर्वर कहाँ से मिलेगा मुझे? यहाँ पे एंड डिवाइसेस में। क्लिक ऑन एंड डिवाइसेस, ये फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ से ये थर्ड वन जो है सर्वर है, यहाँ पे लिखा भी है देखो, सर्वर, इट इज सर्वर, दिस थर्ड वन। जस्ट क्लिक ऑन इट। क्लिक हो गया मीन्स इट इज सेलेक्टेड नाउ, ये सिंबल इंडिकेट करे कि सेलेक्टेड है। तो बस यहाँ क्लिक करके प्लेस करना है। ठीक है, एक सर्वर प्लेस किए, देन स्विच सही है, मतलब वी रिक्वायर्ड स्विच। ठीक है, नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए वी रिक्वायर्ड स्विच। सर्वर और डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए स्विच का रिक्वायरमेंट है। तो स्विच यहाँ पे है, ये सेकंड वाला स्विच, स्विचेस, इसमें विल टेक दिस वन जेनेरिक। ओके, now we will take devices, laptop and computers we can take। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, एंड डिवाइसेस जेनेरिक, एक कंप्यूटर फर्स्ट, एक प्लेस हो गया। अगेन सेलेक्ट इट, ये सिलेक्टेड है ना, तो नाउ यू कैन प्लेस इट। वापस सिलेक्ट करो, प्लेस करो। एक लैपटॉप भी ले लेते, वेयर इज लैपटॉप, दिस वन, सेकंड वन इज लैपटॉप। सी दिस, इट इज रिटन हियर, फर्स्ट वन इज पीसी लिखा है, सेकंड वन लैपटॉप। तो वन, टेक वन लैपटॉप। ओके, नाउ डू द कनेक्शन। कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन ऑप्शन इज प्रेजेंट हियर, राइट, दिस वन। तो डिफरेंट केबल से वी आर टेकिंग दिस वन, फर्स्ट वन, ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप। तो ये सेलेक्टेड है, सिंबल से बताया कि तुमने यू हैव सेलेक्टेड दिस, तो जस्ट डू द कनेक्शन। अगेन सेलेक्ट इट, अगेन सेलेक्ट, अगेन वापस से लो। अभी देखो ये मैंने बताई थी, अभी केबल क्या आ रहा है, सी दिस एरर, connection error क्या, the cable cannot be connected to that port, the cable cannot be connected to that port। मतलब ये पोर्ट पे केबल कनेक्ट नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, एक उसके लिए एक ऑप्शन है क्या करना है हम लोग को। ठीक है, तो ये जो है अभी ये मुझे हटाना है। कैसे करूंगी मैं, बिकॉज ये सिलेक्टेड है ना यहाँ पे। तो जस्ट क्लिक करो तो यहाँ मतलब डिसलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे पोर्ट अवेलेबल करवाना है, मतलब ये कनेक्शन का वायर अवेलेबल नहीं, तो कैसे करवाएंगे? क्लिक ऑन स्विच, क्लिक ऑन स्विच, तो मैक्सिमाइज करेंगे। ये दिख रहा है यहाँ पे, पोर्ट, पोर्ट अवेलेबल है, कनेक्शन पोर्ट अवेलेबल है, तो उसको उठाना है, यहाँ प्लेस कर देना है ये बॉक्सेस में। तो मैं देखो अभी सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने प्लेस की। तो अभी क्या दिखा रहा है, कैन नॉट एड अ मॉड्यूल व्हेन द पावर इज ऑन। अभी पावर ऑन है कि नहीं, ये ग्रीन दिख रहा है तुमको, थोड़ा स्मॉल सा है, ये ग्रीन लाइट दिख रही है यहाँ पे, पावर ऑन है ना, विजिबल है ये ग्रीन, ग्रीन कलर का लाइट जो है, पावर ऑन। इज इट विजिबल दिस स्क्रीन? स्विच का स्क्रीन विजिबल है पूरा? यस मैम। हाँ, ओके। सी पावर ऑन है तो मॉड्यूल ऐड नहीं कर पाएंगे, तो अभी ग्रीन लाइट देखो यहाँ पे है, पहले जस्ट क्लिक करो तो ऑफ हो जाता है बस। तो क्लिक की मैंने, ऑफ हो गया। नाउ यू कैन ऐड दिस पोर्ट हियर, मैंने इसको ऐड कर दी। ठीक है, एक ही ऐड की तो इनफ है, क्योंकि मुझे एक ही कनेक्शन करना है, बट मैंने ऐसी सेपर साइड के लिए सब में मैं ये असाइन कर रही हूँ, दिस पोर्ट। ठीक है, तो ऐड करने के बाद पावर को ऑन कर देना, तो यहाँ क्लिक करो बस। मैं सी माई माउस एरो वेयर इट इज, अभी ऑन है, ऑन है कि नहीं अभी? यस इट इज ऑन, क्लोज कर दो, अभी कनेक्शन हो जाएगा। दिस वन, ये सिलेक्टेड है ना, हो गया अभी कनेक्शन, राइट? कनेक्शन हो गया ना अभी, पोर्ट अवेलेबल हो गया, मीन्स तुम कनेक्ट कर पा रहे हो। स्विच के पास कोई भी वायर नहीं था अवेलेबल,
तो हम लोगों ने अवेलेबल करवा दिए पोर्ट। ओके, नाउ सी तो सिर्फ तुम्हारा डिजाइन हुआ है बस, अभी तक कुछ कॉन्फ़िगरेशन वी हैव नॉट डन येट। ओनली वी हैव डिजाइन द नेटवर्क, सर्वर लिए, देन डिवाइसेस ले लिए, पीसी एंड लैपटॉप, एंड स्विच से कनेक्ट कर दिए बस। अभी हम लोग को क्या करना है, सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन करना है। वी हैव टू डू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएचसीपी इन सर्वर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएचसीपी इन सर्वर। तो क्लिक ऑन सर्वर, स्टेप्स दिखा देती पहले मैं यहाँ पे। सर्वर का आईपी एड्रेस सेट करो, सबनेट मास्क सेट करो। ठीक है, पहला स्टेप ये, क्लिक ऑन सर्वर, डेस्कटॉप, IP configuration, set the IP address of server that I am taking, suppose 10.0.0.1। ये तो हम लोग को पता है, सबनेट मास्क यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं बॉक्स पे, ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क आ जाएगा। बट हम लोग को याद भी रखना है यहाँ थ्योरी के लिए कि क्लास ए का सबनेट मास्क क्या है, क्लास बी का क्या है, क्लास सी का क्या है, ये भूले तो नहीं हो ना। ओके, नाउ आंसर दिस, दिस IP address belongs to which class, this IP address belongs to which class? How you will identify it? By looking at the first block, ये 10 देख के, फर्स्ट रेंज देख के पता लगाना है कि कौन से क्लास को बिलोंग करता है ये IP एड्रेस, फर्स्ट वाला देख के ही बताना है हमेशा। यस राइट, अभी देखो 10 है तो हम लोग को पता है कि क्लास ए का जो रेंज है 0 to 127 है, याद है कि नहीं? क्लास ए का जो रेंज है, क्लास ए रेंज 127 तक है, राइट। क्लास बी 128 to 191, क्लास सी 192 to 223। तो 0 to 127 के बीच में 10 आता है ना, राइट। इट बिलोंग्स टू क्लास ए। तो एक बार क्लास आइडेंटिफाई हो गया तो मुझे पता है कि सबनेट मास्क ऑफ क्लास ए इज, सबनेट मास्क ऑफ क्लास ए इज 255 and 3 times 0। क्लास बी 255.255.0.0। क्लास सी 3 times 255 and 1 times 0। क्लास ए का सबनेट मास्क ये है। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे नहीं देना, यहाँ पे सर्वर का कोई डिफॉल्ट गेटवे नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो सेट हो गया मेरा आईपी एड्रेस ऑफ सर्वर, वी हैव सेट आईपी एड्रेस ऑफ सर्वर, आईपी एड्रेस सेट किए, सबनेट मास्क सेट किए। अभी जाना है मुझे सर्विसेज टैब में, सर्वर में ही आई हैव टू गो ऑन विच टैब, सर्विसेज टैब। इसमें डीएचसीपी सेलेक्ट करना है, बाय डिफॉल्ट इट इज ऑफ। हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक ऑन, क्या करेंगे हम लोग, ऑन लेंगे, ऑन ऑन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पूल नेम, अभी देखो बाय डिफॉल्ट सर्वर, बाय डिफॉल्ट क्या है, सर्वर पूल है, एक सर्वर पूल 1 कर देते हैं हम लोग। डिफॉल्ट गेटवे, तो डिफॉल्ट गेटवे क्या आएगा हमारा सी, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वही आएगा, आईपी एड्रेस है जो वही आएगा। आईपी एड्रेस वी हैव सेट 10.0.0.1। ठीक है, इतना किया हम लोग ने। नाउ क्लिक ऑन ऐड, ऐड हो गया ये वाला हमारा सर्वर पूल, दिस वन, सर्वर पूल 1 डिफॉल्ट गेटवे। इसका डिफॉल्ट गेटवे यही है, मतलब सर्वर के थ्रू ही पास हो रहा है, गेट जो है, गेटवे मीन्स कहाँ से तुम्हारा जो भी रिक्वेस्ट फ्लो कहाँ से होगा, दैट इज डिफॉल्ट गेटवे। फ्रेम कहाँ से पास होगा, रिक्वेस्ट कहाँ से पास होगा, दैट इज डिफॉल्ट गेटवे। तो डीएचसीपी में जो डिफॉल्ट गेटवे है वो सर्वर का ही आईपी एड्रेस होता है। डीएचसीपी में जो डिफॉल्ट गेटवे है वो सर्वर का ही आईपी एड्रेस होता है, बिकॉज सर्वर के थ्रू ही आईपी एड्रेस जो है ऑटोमेटिकली असाइन हो रहे हैं पीसी को। नाउ सी, ये सब कुछ भी नहीं करना है, डीएनएस तो प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर रहे हम लोग, तो डीएनएस नहीं लेना है।
स्टार्ट आईपी एड्रेस ये अपने आप इसने ले लिया, 10.0.0 से स्टार्ट हो रहा है। सबनेट मास्क उसने ले लिया, क्लास ए का है तो ये सबनेट मास्क है। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स 512 यूजर्स कनेक्ट हो सकते, 512। ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट जो एज इट इज रखो। ऐड कर दिए तो ऐड हो गया ये। ठीक है, नाउ सी डन हो गया हमारा प्रैक्टिकल, कुछ भी नहीं बाकी है। नाउ क्लिक ऑन पीसी, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे स्टैटिक एंड डीएचसीपी है तो वी हैव टू सेलेक्ट डीएचसीपी। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल मींस ऑटोमेटिकली असाइन करना चाहिए, बिकॉज सर्वर पे हम लोगने डीएचसीपी को ऑन रखे, राइट। और सर्वर से स्विच कनेक्ट है, स्विच से वो सब डिवाइसेस कनेक्ट है, तो सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन जब हुआ है डीएचसीपी का, तो बाकी सब डिवाइसेस को क्या मिलना चाहिए, ऑटोमेटिकली असाइन होना चाहिए आईपी एड्रेस। तो क्लिक ऑन दिस डीएचसीपी, डीएचसीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। तो इसे 10.0.0.2 असाइन कर दिया ऑटोमेटिकली इसको। ठीक है, ना इसका देखते हैं PC1 डेस्कटॉप। सेट नहीं करेंगे, स्टैटिक नहीं लेंगे हम लोग, कुछ टाइप नहीं करने वाले, डीएचसीपी के थ्रू आना चाहिए। डीएचसीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल 10.0.0.3 असाइन कर दिया इसने ऑटोमेटिकली। नाउ सी नेक्स्ट वन PC2 डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे डीएचसीपी 10.0.0.4 सक्सेसफुल आ गया। ठीक है, नाउ दिस वन लैपटॉप in that desktop IP configuration, यहाँ पे हम लोग we will take this one DHCP, तो DHCP request successful। तो इसने ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया 10.0.2 असाइन किया इसको, इसको 3, इसको 4 एंड इसको 5, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे 1 दिए थे ना 10.0.0.1, तो इसने बाकी के एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन किया 10.0.0.2 देन 3 देन 4 एंड देन 5। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स कितने स्मॉल है, सिर्फ कनेक्शन करना है, सर्वर का आईपी एड्रेस सेट करना है, सर्वर का आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस सबनेट मास्क, देन सर्विसेज में जाके डीएचसीपी को ऑन करना है, पूल नेम देना है, डिफॉल्ट गेटवे क्या आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर ये, और बस हो गया। यहाँ पे जाके डीएचसीपी को ऑन करना है, डेस्कटॉप पे जाके डीएचसीपी को ऑन करना है, सिलेक्ट करना है। एनी डाउट इन दिस, क्लियर है ये डीएचसीपी का प्रैक्टिकल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। वी डिड द कॉन्फ़िगरेशन इन सर्वर, राइट। कहाँ पे किया हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन ऑन सर्वर, किस चीज का कॉन्फ़िगरेशन, डीएचसीपी का कॉन्फ़िगरेशन। सर्वर पे मतलब मेनी सर्विसेज आर अवेलेबल इन सर्वर। सी आई हैव क्लिक्ड ऑन सर्वर, सर्विसेज में देखो सर्वर के पास बहुत सारे फीचर्स है, सर्विसेज है, लाइक HTTP, DHCP, DHCP वर्जन 6, TFTP, DNS। तो हम लोग को पर क्या करना है, डीएचसीपी का परफॉर्म करना है। ठीक है, तो वी हैव टेकन डीएचसीपी। तो डीएचसीपी अगर तुम ऑन कर देते हो सर्वर पे, तो जो भी सर्वर से वो जो डिवाइस कनेक्टेड है उनको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा, राइट। ओके, इसका स्टेप्स भी तुम याद रख सकते हो। अगर इफ आई विल आस्क दिस क्वेश्चन सी के व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ व्हाट इज डीएचसीपी, that is the theoretical question, right? What is DHCP? Easily you can answer. DHCP stands for this dynamic host configuration protocol, and you can tell the use of DHCP. Okay, DHCP का काम क्या है? It assigns IP address automatically to each device which is connected to that server. Okay, like that you can answer. But अगर practically if I will ask this, tell me the steps of DHCP server, how you will answer? See, first you have to design the network. You can answer like this. We can take one server, then with the help of switch, we can connect the devices. Okay. Now we have to do the configuration of server. So click on server, desktop, IP configuration. ये याद हो जाना चाहिए. Then set the IP address and subnet mask. Then on server only, click on services tab. Then services में से we have to select DHCP. So by default it is off. मतलब पहले से ऑफ रहता है, हम लोग को ऑन करना पड़ेगा। Then we have to give the pool name and the default gateway. Default gateway is the IP address of the server only.
So after giving the pool name and the default gateway, click on add button. Click on add button. So उसके बाद क्या करना है, जितने भी the devices which is connected to the switch, वो device, click on the devices or desktop IP configuration, select DHCP. So if it is showing DHCP request successful, means क्या है, configuration, we have done the configuration properly, right? So like that you can answer because के steps भी small ही है. Okay, so next one is the DHCP के screenshots है. This file I think I have already uploaded this in Google Classroom. You can refer this. DNS भी हो गया था हमारा, डोमेन नेम सिस्टम.